इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन। You have learned that share capital is the main source of finance of a joint stock company. Such capital is raised by issuing shares. Those who hold the shares of the company are called the shareholders and are owners of the company. Company may need additional amount of money for a long period. It cannot issue shares every time. It can raise loan from the public. The amount of loan can be divided into units of small denominations and the company can sell them to the public. Each unit is called a debenture and holder of such units is called debenture holder. The amount so raised is loan for the company. In this lesson, we shall learn about issue of debentures and its accounting treatment. कंपनी की पूंजी संरचना दीर्घकालीन पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, जो दो प्रकार की पूंजी से मिलकर बनती है, अंश पूंजी और ऋण पूंजी। अंश पूंजी के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम ऋण पूंजी के बारे में अध्ययन करेंगे। अंश पूंजी के अंतर्गत पूर्वाधिकार अंश और सामान्य अंश सम्मिलित होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। जबकि ऋण पूंजी के अंतर्गत ऋण पत्र व अन्य दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्रों के अंतर्गत ऋण पत्र स्कंद, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न करती हों अथवा नहीं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्व मुद्रा कॉमन सील के अंतर्गत निर्गमित एक प्रमाण पत्र है, जो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों से चल प्रवाह द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा अपनी आवश्यकता की समाप्ति पर ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जिसे ऋण पत्रों का शोधन या रिडम्पशन कहा जाता है। Objectives. After studying this lesson, you will be able to state the meaning and types of debentures, explain the procedure of issue of debentures and its accounting treatment, explain issue of debentures as collateral security, explain writing of the discount and loss on issue debentures and their accounting treatment in the book of the company, calculate interest on debentures. Debenture and its types. A debenture is a unit of loan amount. When a company intends to raise a loan amount from the public, it issues debentures. A person holding debenture or debentures is called a debenture holder. A debenture is a document issued under the seal of the company. It is an acknowledgement of the loan received by the company equal to the nominal value of the debenture. It bears the date of redemption and rate and mode of payment of interest. A debenture holder is the creditor of the company. As per section 212 of Companies Act 1956, but अब नया कंपनी अधिनियम 2013 आया है, तो उसके अनुसार टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हम देखें। डिबेंचर कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योर और मॉर्गेज debentures. There are the debentures that are secured by a charge on the assets of the company. These are also called mortgage debentures. The holders of secured debentures have the right to recover their principal amount with the unpaid amount of interest on such debentures out of the assets mortgaged by the company. In India, debentures must be secured. Secured debentures can be of two types. First, mortgage debentures and second, mortgage. The holder of such debentures have a first claim on the assets charge.
सबसे पहला जो मॉर्गेज डिबेंचर्स हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है, किसके ऊपर अधिकार प्राप्त है कि वह क्लेम कर सकते हैं कंपनी की संपत्तियों पर। सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर्स, द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स हैव अ सेकेंड क्लेम ऑन द असेट्स चार्ज। Unsecured debentures, debentures which do not carry any security with regard to the principal amount or unpaid interest are called unsecured debentures. They are called simple debentures. वह डिबेंचर्स जिनके लिए कोई गारंटी नहीं है, वो किसी पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, वह कहलाए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ऐसे ऋण पत्र जिनका किसी भी प्रकार की प्रतिभूति में परिवर्तन नहीं किया जाता है और ऐसे ऋण पत्र जिनके पास कंपनी ने कोई प्रतिभूति प्रभार के रूप में रखी हो तो वह सुरक्षित ऋण पत्र कहलाए। और ऐसे प्रभार स्थिर व चल दोनों हो सकते हैं, फिक्स हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के आधार पर या शोधन के आधार पर भी दो प्रकार के ऋण पत्र हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी एक निश्चित समय पश्चात भुगतान कर देती है वह शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। और ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान सामान्यतः कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है, इनका भुगतान कंपनी के समापन पर ही होता है। ऐसे ऋण पत्रों को निरंतर ऋण पत्र, परपीचुअल डिबेंचर्स भी कहा जाता है या इरिडीमेबल डिबेंचर्स भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, these are the debentures that are registered with the company. The amount of such debentures is payable only to those debenture holders whose name appears in the register of the company. Bearer debentures, these are the debentures which are not recorded in a register of the company. Such debentures are transferable merely by delivery. Holder of these debentures is entitled to get the interest. अब ऐसे ऋण पत्र जिसके धारक का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज होता है, ब्याज भुगतान तिथि को जिनका नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा होता है, ब्याज प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण प्रलय के माध्यम से होता है। और ऐसे ऋण पत्र जिनके धारक का नाम व पता आदि कंपनी अपने पास नहीं रखती है, जिस व्यक्ति के पास ऐसे ऋण पत्र होते हैं वही इनका स्वामी बन जाता है। ब्याज भुगतान हेतु कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन के समय विभिन्न तिथियों के कूपन या चेक प्रदान करती है। देय तिथि पर धारक इनकी राशि बैंक से प्राप्त कर लेती है। तो वो हो गया बियरर डिबेंचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, these are the debentures that can be converted into shares of the company on the expiry of pre-decided period. The term and conditions of conversion are generally announced at the time of issue of debentures. Non-convertible debentures, the debenture holders of such debentures cannot convert their debentures into shares of the company. ऐसे ऋण पत्र जिन्हें कंपनी एक निश्चित समय पश्चात अंशों या नए ऋण पत्रों में बदल देती है, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी यदि संपूर्ण ऋण पत्र का परिवर्तन करती है तो इसे पूर्णतः परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। वह यदि ऋण पत्र के किसी एक भाग का ही परिवर्तन करती है तो इसे अंशतः परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। और ऐसे ऋण पत्र जिनका किसी भी प्रकार के प्रतिभूति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। अन्य शब्दों में इन ऋण पत्रों का कंपनी केवल भुगतान ही करती है।
यदि कंपनी ने अपरिवर्तनीय ऋण पत्र निर्गमित किए हैं तथा बाद में इनका परिवर्तन करना चाहती है तो यह ऋण पत्र धारियों के पास एक विकल्प के रूप में होगा। यदि वे विकल्प उपयोग नहीं करते हैं तो कंपनी उन्हें नकद भुगतान ही करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, first debentures and second debentures. These debentures are redeemed before other debentures and these debentures are redeemed after the redemption of the first debenture. जो पहले ऋण पत्रधारी हैं उनका रिडीम्ड होने के बाद में इन सेकेंड डिबेंचर्स को रिडीम शोधन किया जाता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड, मॉर्गेज और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में आ गया फर्स्ट मॉर्गेज एंड देन सेकेंड मॉर्गेज। रिडम्पशन के आधार पर रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, रिकॉर्ड्स के आधार पर रजिस्टर्ड एंड बियरर, कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, प्रायोरिटी के आधार पर फर्स्ट एंड सेकेंड डिबेंचर्स। Name the type of debentures against each of the following. First, debentures that are redeemed before other debentures. Debentures the holder of which have a first claim on the assets chart. Debentures that are transferable merely by delivery, and debentures that are paid back only when the company goes into liquidation. Issue of debentures. By issuing debentures means issue of certificate by the company under its seal, which is an acknowledgement of debt taken by the company. The procedure of issue of debentures by a company is similar to that of the issue of shares. A prospectus is issued, applications are invited, and letters of allotment are issued. On rejection of applications, application money is refunded. In case of partial allotment, excess application money may be adjusted towards subsequent calls. Issue of debentures takes various forms, which are as under. Debentures issued for cash, debenture issued for consideration other than cash, debentures issued as collateral security. जिस तरह से अंशों का निर्गमन किया जाता है उसी तरह से डिबेंचर्स यानी ऋण पत्रों का भी निर्गमन किया जाता है। जो विधि अंशों को निर्गमित करने के लिए अपनाई जाती है वही विधि ऋण पत्रों को निर्गमित करने के लिए अपनाई जाती है। वही प्रोस्पेक्टस होता है इसका भी, इसमें भी वही एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट होता है एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसमें भी होती है। और रिजेक्शन यदि होता है एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशन मनी रिफ़ंड भी की जाती है। पार्शियल अलॉटमेंट होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी होती है। ये सभी चीज़ें जो कि इशू ऑफ शेयर्स में हमने पढ़ी थी वही डिबेंचर्स में भी होती हैं। अब यहाँ पर डिबेंचर्स को कैश के थ्रू भी इशू किया जा सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, और कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर भी हो सकता है। तो डिबेंचर्स शेयर्स की तरह ही एट पार भी उसका निर्गमन हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, उसी की तरह होगी जनरल एंट्री जिस तरह से हम शेयर्स के एंट्री करते थे। तो डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश एट पार, एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट ऑन देयर अलॉटमेंट। डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट किया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसको डिबेंचर्स अकाउंट में। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट ऑन अलॉटमेंट। देन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट की एंट्री होगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। Money due on allotment is received, bank account debit to debentures allotment account. First and final call is made,
Debentures first and final call account debit to debentures account. Debentures first and final call money is received. Bank account debit to debentures first and final call account. Two calls, first call and second call may be made. Journal entries will be made on the lines made for first and final call.